every region of India, they were coming to the central government and they were demanding for separate statehood, and that too on the basis of language. So what the government did was that it appointed the State Reorganization Commission 1953. But it was not the first commission. इससे पहले भी कमीशन थे जो आपके किताब में अभी मेंशन नहीं है. But in short, for your knowledge, I will be telling you. ठीक है? And I'll be also telling you in detail, that is one by one, कि how the new states were formed. ठीक है? So post independence, the first thing what happened कि 1947 से 49 के बीच what we saw, integration of princely states. क्या देखा हमने? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है? एंड हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स? 549 प्लस 3. 549 plus 3, that is major princely states. तो 549 plus 3, और इसमें ये 3 कौन है? इसमें ये 3 एक है हैदराबाद. 549 में मणिपुर इज इंक्लूडेड. ठीक है? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर. हैदराबाद जो है हम बोल सकते हैं एनेक्स्ड थ्रू ऑपरेशन पोलो. Hyderabad, it was annexed through Operation Polo, and Junagadh, it was referendum. ठीक है? Junagadh, it was referendum. ठीक है? referendum हुआ था. And Jammu and Kashmir, we have not studied it, but there was an instrument of accession. This what happened from 1947 to 49. Clear है? ये already हमने किया हुआ है. Yes everyone, this is clear. ठीक है? Now forget about the book. जो मैं आपको बोल रहा हूं वो देखो यहां पे. Then we are going to talk about, ये हो गया सबका. Then we are going to talk about committees for reorganization of states. मतलब कमिटीज थे जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए बने. सबसे पहला was the S.K. Dhar Commission. Write it down. S.K. Dhar Commission. ठीक है? Now this S.K. Dhar Commission, it was formed in the year 1948. And it was formed by the Constituent Assembly. हमारा Constitution 1949 में बनकर तैयार हुआ. So 1948, the Constituent Assembly of India, it appointed a commission under S.K. Dhar. ठीक है? Under this person S.K. Dhar. So that's why it's referred as S.K. Dhar Commission. And the role was with regard to reorganization of the state. मतलब it had to give recommendations कि कैसे states को reorganize किया जाए. So S.K. Dhar Commission ये setup हुआ था. Remember it. You can go like this. Setup 1948. ठीक है? It's June 1948.
June 1948. Then we can talk about the members. Members में S.K. Dhar, he was the chairperson. Then the other two members, one was Jagat Narayan Lal and Panna Lal. Jagat Narayan Lal and Panna Lal. So basically it's a 3-member commission, है ना? ठीक है, और इसका रिकमेंडेशन क्या था? रिकमेंडेड reorganization of states as per administrative convenience. मतलब एसके धार कमीशन ने what it said that the state should be reorganized as per the administrative convenience. ये कौन बनाया? ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया. कब बनाया? जून 1948. कितने मेंबर्स है? 3 मेंबर्स है, एसके धार, पन्ना लाल और जगत नारायण लाल. एंड व्हाट वाज द रिकमेंडेशन? कि इंडिया का जो स्टेट्स का बाउंड्री बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे बनना चाहिए. ठीक है, अब जो कमिटी के मेंबर्स थे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कांग्रेस था, ये सब था, इसने बोला हट, ये गलत है, ये गलत, इसने गलत ये किया. सो व्हाट दे डिड वाज दैट नाउ दे विल अपॉइंट अ सेकंड कमीशन. इसके बाद आता है जेवीपी कमिटी. ठीक है, जेवीपी कमिटी. नाउ दिस जेवीपी कमिटी, इट वाज अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस. ये दिसंबर 1948 में हुआ. नाउ दिस वाज अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस, रिमेंबर इट. वो अपॉइंटेड बाय द Constituent Assembly, and whatever recommendations was given by S.K. Dhar, that was rejected. Now this is by the Congress Party, Indian National Congress के द्वारा है. That is the JVP committee. अब इसी से आपको इसका members का नाम पता चल जाएगा. ठीक है, members 3 members थे. J stands for जवाहरलाल नेहरू, V stands for Vallabhbhai Patel and P stands for Patabhi Sitaramaiya. ठीक है, मेंबर्स कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, एंड पताबी, ठीक है, इट्स पताबी सीतारमैया. सीतारमैया. So these were the 3 members: Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Sardar Patel, and Patabhi Sitaramaiya. Got it? Clear है? चलो आगे देखते हैं. अब ये भी तो कुछ रिकमेंडेशंस करेगा. दूसरा बात ये था, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था टू स्क्रूटनाइज द रिकमेंडेशंस गिवन बाय धार कमीशन.
मतलब why was this JVP committee made? So that whatever recommendations the Dhar commission has given, उसको स्क्रूटनाइज किया जा सके. स्क्रूटनाइज मींस उसका एग्जामिनेशन किया जा सके, उसके ऊपर जांच किया जा सके कि वेदर इट हैज बीन डन गुड और नॉट. ठीक है. एंड फाइनली इसका हम क्या बोल सकते थे कि व्हाट वाज इट्स रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन क्या था? रिकमेंडेशन था इट रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस. ठीक है. इट रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ reorganization of state. ठीक है. क्लियर है. सो ये आपका धार कमीशन का था कि इट रिजेक्टेड, हम बोल सकते हैं इट रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. क्लियर है सबका. सो दिस इज व्हाट इज द जेवीपी कमिटी. अब जेवीपी कमेटी पे आके नहीं रुकेगा. अभी आपने यहां पे क्या देखा? ये देखो यहां पे क्या देखा? यहां पे ये देखा है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में सेटअप होता है. तो इसका मतलब उसके सेटअप होने के पीछे कुछ तो एक एपिसोड चला होगा ना. 1 by 1 कुछ एपिसोड्स चले होंगे. उसके बाद लास्ट एक कमिटी बना जिसको हम बोलते हैं we call it as फैजल अली. ठीक है. इट्स फैजल अली कमीशन. बहुत सारे जगह फैजल में FAZL लिखा रहता है. फैजल अली कमीशन. Now this Fazal Ali Commission, it was formed December 1953. अब कुछ नजर आ रहा है? ठीक है. It's formed December how much? 1953. And इसमें भी 3 members थे. Members कौन कौन है? मेंबर्स में फैजल अली इज द चेयरपर्सन. ठीक है. देन HN कुंजरू, एंड KM पनीकर. KM पनीकर. ठीक है. HM कुंजरू एंड KM पनीकर. तो फैजल अली, HM कुंजरू एंड KM पनीकर, दे आर द, यू कैन से. और इन लोगों ने क्या किया? दे एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ basis of reorganization of state boundary. अब तुम बोलोगे सर 1948 के बाद गवर्नमेंट को ऐसा क्या हुआ कि 1953 में एक कमीशन बना दिया? ठीक है. 5 साल के बाद, 5 साल क्या गवर्नमेंट सो रहा था? नॉट एट ऑल. गवर्नमेंट क्यों अवेकन हुआ? ये पिक्चर देखो ना. लुक एट दिस पिक्चर. क्या हुआ? आंध्र प्रदेश को गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, इट वाज फोर्स्ड टू गिव आंध्र प्रदेश अ सेपरेट स्टेट.
ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तमिलनाडु से अलग करके, मद्रास प्रोविंस से अलग करके आंध्रा क्रिएट कर दिया। तो ये पिक्चर क्या बता रहा है? ऑल ऑफ देम दे आर अटैकिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट कि दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। ये सब अटैक कर रहे हैं। ये नेहरू जी को देखो कैसे बैठे हुए हैं। तो व्हाट हैपेंड? द सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको 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 रुको, थमो, हम लोग अभी करते हैं। सो स्ट्रेट अवे व्हाट दे डिड, दे केम अप विद द फैजल अली कमीशन। फैजल अली कमीशन ने पूरा चेक किया, बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया, हम उसके डिटेल पे नहीं जाएंगे because that is not important for you to know now. But one thing is that the commission, it accepted language as a basis of reorganization of states. ठीक है, लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और बोला जाता है कि 1953, ठीक है, बोला जाता है ये हो गया। देन वन शुड नो द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लैंग्वेज बेसिस, वो क्या था? आंध्र प्रदेश। दैट इज 1952, December 1952 Andhra Pradesh was created. ठीक है, 1952 आंध्र प्रदेश was created. ठीक है, उसके बाद what the government did, अब गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता है, ध्यान से देखो। नाउ द गवर्नमेंट व्हाट इट विल डू, देखो यहां पे द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन सेटअप किया 1953 में, एंड दैट कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ 16 स्टेट्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप क्या चीज? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, यही वाला को बोल दिया कि 1953 में इट हैज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, 1953, ठीक है, क्लियर कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एंड व्हाट वाज इट्स रिकमेंडेशन? Recommendation was creation of कितने states? Creation of 16 states and 3 union territories. 16 states और 3 union territories का creation था। ठीक है, बट यहां पे एक चीज हो गया, वो क्या हुआ? वी कैन से दैट पार्लियामेंट पास्ड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। पार्लियामेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, को लागू किया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, 14 states and 6 union territories were formed. ठीक है, अकॉर्डिंगली 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज तुम्हारा फॉर्म हुए। एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, रिमेंबर दैट।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।